मैं प्रोफेसर जोशी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिखाने वाला हूं। ये टॉपिक बेसिक डेफिनेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ऑफ t is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st ft dt and it is function of s। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में दो वेरिएबल आएगा, एक t and function of t is converted into function of s by this integral। और ये इंटीग्रल एक्चुअली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल है। ये लाप्लास के जो प्रॉपर्टीज है, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये इंटीग्रल हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, इसको कहते हैं स्टडी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहले तो कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन। सबसे पहले इफ द फंक्शन इज कांस्टेंट, यानी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट ft, this function of t is 1 constant, then I'll get by definition Laplace transform of 1 is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st, ft की जगह पे 1 आएगा dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा e raised to minus st upon minus s, limit 0 to infinity, put upper limit e raised to minus infinity is 0, e raised to 0 is 1, finally you will get therefore Laplace transform of 1 is equal to 1 upon s। Laplace transform of any constant k will be k upon s। तो ये एक फॉर्मूला डिराइव है। दूसरा देखते, सेकंड ft is equal to e raised to at, ये देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन Laplace transform of e raised to at is going to be integral 0 to infinity e raised to minus st, ft की जगह पे e raised to at dt। इंडाइसिस ऐड करेंगे, 0 to infinity e raised to minus at plus minus st plus at dt, ये होगा इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus s minus a t dt on integration e raised to minus s minus a upon minus s minus a 0 to infinity। आगे का पार्ट इधर लिखता हूं, that is therefore Laplace of e raised to at is equal to, put upper limit s minus a t, put t equal to infinity, e raised to infinity is 0, minus put t equal to 0, 1 upon minus s minus a, finally it will be 1 upon s minus a। ये एक डेरिवेशन हुआ, and here I can write similarly Laplace transform of e raised to minus at, then replace a by minus a, you will get 1 upon s plus a। ये लेकिन एक ही फॉर्मूला याद रखने का, दोनों करने की जरूरत नहीं। ओके, हाँ, t
तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं, तीसरा फॉर्मूला डेरिवेशन, फंक्शन ऑफ t is sin at. Use basic definition, Laplace of ft, Laplace of sin at equal to integral 0 to infinity e raised to minus st sin at dt. अभी ये इंटीग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला है, तो इसका यूज करेंगे. e raised to minus st sin bt, b is a and a is minus s. तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, तो ऐसा आएगा e raised to minus st upon s square plus a square into bracket a sin bt, a की जगह पे माइनस एस sin at. दूसरा है b cos bt, b is a here, तो माइनस a cos at all between 0 to infinity. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो put t equal to infinity and you will find everything into 0, पूरा 0 हो जाएगा. माइनस पुट t इक्वल टू 0, ये मिलेगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ब्रैकेट t इक्वल टू 0, साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1. फाइनली रिजल्ट आएगा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यहां पर मैं लिखेगा therefore Laplace of sin at. सिमिलरली एक और फॉर्मूला है, सिमिलरली Laplace of cos at is equal to s upon s square plus a square. ये एक और इजीली सिमिलर फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं. ओके, तो ये एक रिजल्ट डिराइव किया. चलो कैंसल, एक मिनट. नेक्स्ट फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एटी, हाइपरबोलिक साइन एटी, Laplace transform of sin at. बाय डेफिनेशन इट इज e raised to minus st sin at. आगे हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, e raised to minus st, e raised to at, e raised to minus at upon 2 dt. sin at का फॉर्मूला है e raised to at minus e raised to minus at upon 2. नेचुरली 2 बाहर लेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to minus st plus at minus e raised to minus st minus at dt. आगे हाफ 0 to infinity e raised to minus s minus a t minus e raised to minus s plus a t dt. नेक्स्ट स्टेप इधर लिखता हूं, तो ये देगा हाफ e raised to minus s minus a t upon minus s minus a minus e raised to minus s plus a t upon minus s plus a 0 to infinity. ये हो गया इंटीग्रेशन. पुट द वैल्यूज, अपर लिमिट e raised to minus infinity 0, ये भी 0, तो ये देगा
हाफ 0 माइनस 0 माइनस लोअर लिमिट ये देगा 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए प्लस 1 अपॉन एस प्लस ए. फर्दर सिंप्लीफाई हाफ ये देगा 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए. After LCM, you will find result A upon S square plus A square, S square minus A square. यहाँ पर माइनस मिलेगा आफ्टर LCM. तो ये देगा sin 80 का. एंड सिमिलरली Laplace transform of cos 80 ये होगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये भी इजी फॉर्मूला है डेरिवेशन. ओके स्टॉप. नेक्स्ट फंक्शन t रेज टू n. बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ t रेज टू n इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एस टी t रेज टू n. यहां पर लिखेंगे पुट एस टी equal to u. This will give you t equal to u upon s. dt will be minus du. dt is going to be du upon s. और एक लिमिट, alright, लिमिट t versus u. t का लिमिट है 0 टू इंफिनिटी. व्हेन t is 0 यहां पर u will be 0. When t is infinity u is going to be infinity. So therefore Laplace of t raised to n 0 to infinity e raised to minus u t raised to t की जगह पे ये आएगा u अपॉन ए u अपॉन s रेज टू n इंटू du अपॉन s ऐसा आएगा. अभी सिंप्लीफाई करेंगे. इसको लिखेंगे 1 अपॉन s रेज टू n प्लस 1 डिनोमिनेटर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस u रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 du. ये गामा फंक्शन आ गया. दिस इज गोइंग टू बी गामा n प्लस 1. ये जो पूरा इंटीग्रल है वो गामा n प्लस 1 होगा डिवाइडेड बाय s रेज टू n प्लस 1. एंड इफ n इज इंटीजर then it is n factorial s raised to n plus 1. This is if n is integer. तो ये एक और फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया. ओके